we will relive some of the euphoric and the tumultuous phases of the Indian markets, because who better to answer them than a person who has been right on that desk for last 25 years and has seen it all. ये उतार चढ़ाव बाजारों में आना बहुत स्वाभाविक है. डोंट गेट अननर्व्ड बाय दिस, पैनिक मत करिए, खाली फोकस करिए अबाउट हाउ वेल डू यू अंडरस्टैंड द कंपनी जिसमें आपने निवेश किया है. एंड आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट लेसन, एज यू कॉल इट, बैप्टिज्म बाय फायर, दैट आई लर्नड व्हेन आई वाज अ यंग एनालिस्ट. अंग्रेजी में कहावत है कि ट्रीज डोंट ग्रो टू द स्काईज. बहुत शानदार कोई पेड़ होता है, बहुत जल्दी से बढ़ जाता है, लेकिन आसमान को फिर भी नहीं छू सकता, कहीं ना कहीं उसे रुकना पड़ता है. और वही चीज़ लागू है फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में भी, बुल मार्केट्स के बारे में भी. हमारा मानना ये है कि वी आर हेयर टू, नंबर 1, प्रोटेक्ट आवर इन्वेस्टर्स वेल्थ, एंड नंबर 2, ग्रो इट. मैं वॉरेन बफेट को दुनिया का सबसे समझदार निवेशक मानता हूँ. उन्होंने बहुत सरल शब्दों में एक बात कही थी, द मार्केट इज डिजाइंड टू ट्रांसफर वेल्थ फ्रॉम एन एक्टिव इन्वेस्टर टू अ पेशेंट इन्वेस्टर. ये मानना कि जो बाजार में कमजोरी का दौर चल रहा है वो ट्रंप और टैरिफ वॉर्स को लेके है, वो भी गलत है. मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि द मार्केट पीक्ड समटाइम इन सितंबर. बाय द वे, देयर वर नो साइंस ऑफ एनी टैरिफ वॉर देन. Welcome to yet another episode of Phenomatic Talk Show, where over these months we have been hosting some of the best speakers in our industry and the legends of our industry. Today we have somebody who is equally capable. Today we have with us Mr. Ajay Tyagi, who is the head of equity at UTI Mutual Fund. Ajay sir is a CFA charter holder from the CFA Institute USA, and he holds a master's degree in finance from Delhi University. He has been with UTI since the year 2000, so he would have seen more than 25 years under fund management, and he has won so many successful awards managing both offshore funds and the inshore funds. He presently manages UTI's flagship equity fund, which is the UTI FlexiCap Fund, a fund that has grown more than 32 times in last 33 years. Yes, you've heard me right. Creating wealth for generations of Indian investors. His sharp investment acumen and has earned him numerous awards and recognitions both in India and globally. But beyond just the numbers, let me tell you, the reason why we invited Ajay sir, and he's been so kind enough to accept our invitation, is Ajay sir is known in our industry for his steadfast belief in quality and growth investing, and which is where I would want to prick his brain today as to how in this world of ever-changing narratives, he has been able to hold on to his belief so successfully. So guys, in today's conversation, we will relive some of the euphoric and the tumultuous phases of the Indian markets, because who better to answer them than a person who has been right on that desk for last 25 years and has seen it all. And we'll dive into the evolution of UTI, we'll understand Ajay sir's philosophy of growth and quality, we'll understand the market outlook, what it looks like for the next decade, and we'll also touch upon some bits on the investor behavior. So thank you so much, Ajay sir, for coming down to our show. I mean, it's been an absolute honor to Thank you for getting me here, Hitesh. Have you here, sir. All right, so let's deep dive straight into the question, sir. And 25 years into fund management. I mean, starting from the year 2000, I'm sure you would have had a baptism by fire, and then straight you get into a boom phase, and then the 2008 meltdown. So let me first ask you, sir, about the crashes of the market. You have seen the year 2000, you have seen the year 2008, you have seen the year 2020. So what has it been feeling like sitting in that cockpit during those moments of crash? Did you ever doubt your convictions, and how were you able to keep the faith of the investors? Sure. Thank you, Hitesh, for that question right up front. Like you and I were discussing a while back, I think a lot of things is driven by destiny. So yes, while I was always interested in investments, managing money, लेकिन कहीं ना कहीं destiny ने साथ दिया, and I landed up at UTI. And UTI, as we all know, is the oldest institution
in the country in terms of an investment experience. सन 1964 के अंदर हमारी जर्नी शुरू हुई थी। तो जाहिर बात है सन 1964 से लेके आज तक ऐसे बहुत मार्केट में उतार चढ़ाव इस संस्था ने देखे हैं। आपने बात करी सन 2001 के क्रैश की, आपने बात करी 2008 के क्रैश की, लेकिन उससे पहले भी बहुत क्रैशेस हुए हैं। आप में से बहुत लोगों को याद होगा 1992 वी हैड अ हर्षद मेहता लेड क्राइसिस इन द मार्केट। उससे 2-3 साल पहले देयर वाज a crash which happened because India had to pledge its gold and we were in a dire straits. तो इन सब का एक collective experience UTI ने देखा था, and when I joined UTI, I of course was very young. I was not in a commanding position. I was not a manager. I was not a fund manager. I was just an analyst. But the experienced fund managers around me said that look, हमने ये बहुत बार देखा है, ये उतार चढ़ाव बाज़ारों में आना बहुत स्वाभाविक है। डोंट गेट अननर्व्ड बाय दिस, पैनिक मत करिए, खाली फोकस करिए अबाउट हाउ वेल डू यू अंडरस्टैंड द कंपनी जिसमें आपने निवेश किया है। अगर आपकी पकड़ उस कंपनी के ऊपर बहुत मजबूत है, अगर आप समझ पा रहे हैं कि उस कंपनी की क्षमता आने वाले 5 या 10 सालों में कितनी है, बिल्कुल पैनिक मत करिए, बने रहिए। एंड आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट लेसन, as you call it, baptism by fire, that I learned when I was a young analyst. By the time the second crisis happened, which was 2008, the great financial crisis, मेरे को अनुभव हो चुका था और उस समय तक ये समझ में आ चुका था कि ऐसे मौक़ों पे पैनिक करने की बजाय थोड़ा ग्रीडी होना ज़रूरी है, बिकॉज दीज थिंग्स डोंट लास्ट फॉर एवर। राइट सर, बहुत क्लियरली सर ने कहा कि भाई आपको अपने आइडियाज़ पे कन्विक्शन होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम यू नीड टू होल्ड ऑन टू योर नर्व, बी वेरी काम, देन ओनली यू विल सेल थ्रू दीज डिफिकल्ट टाइम्स। बट सर जैसे कहते हैं ना कि हमारा मार्केट ग्रीड और फियर के बीच में चलता है, तो एक तरफ तो हमने फियर के बारे में बात की, बट लेट्स टॉक अबाउट द अदर साइड विच इज द ग्रीड, बिकॉज यू हैव ऑल्सो सीन द huge rise of the market in the year 2004 to 7, or let's say the last 3-4 years till 2024, the kind of one-way run that we had in the market. So in such times sir, मैं देखता हूँ कि जब हर दूध वाला पान वाला मार्केट में अगर आपको स्टॉक टिप्स देना चालू कर दे, हाउ डू यू बैलेंस द एक्साइटमेंट ऑफ अ बुल रन विद द डिसिप्लिन ऑफ स्टिकिंग टू फंडामेंटल्स सर? श्योर, आई थिंक अगेन इसके अंदर भी हितेश, मेरा मानना ये है कि आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस, जैसा मैंने कहा मार्केट के उतार चढ़ाव जब आपने बहुत बार महसूस किए हों और एक्सपीरियंस किए हों, वही काम में आता है। जिस तरह से बियर मार्केट्स डोंट लास्ट फॉर एवर, इवन बुल मार्केट्स डोंट लास्ट फॉर एवर। अंग्रेजी में कहावत है कि ट्रीज डोंट ग्रो टू द स्काइज। बहुत शानदार कोई पेड़ होता है, बहुत जल्दी से बढ़ जाता है, लेकिन आसमान को फिर भी नहीं छू सकता, कहीं ना कहीं उसे रुकना पड़ता है। और वही चीज़ लागू है फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में भी, बुल मार्केट्स के बारे में भी। और यहाँ पर भी वी आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन व्हाट इज़ द ट्रू पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस। क्या ये बिजनेस 25-30% ग्रो करता रहेगा फॉर द नेक्स्ट 10-20 ईयर्स? हम में से बहुत लोग जिनकी मैथ्स में रुचि है, वो ये जानते हैं कि 20-25% से कंपाउंड करना कितना मुश्किल होता है। मैं कह सकता हूँ इम्पॉसिबल होता है। एंड बाय द टाइम यू रीच ईयर नंबर 20, यू वुड हैव बीन अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। सो देयरफॉर अगेन व्हेन पीपल स्टार्ट टू गेट एक्साइटेड, और बुल मार्केट्स में नैरेटिव्स बहुत आते हैं। बुल मार्केट के अंदर लोग बहुत कहानियाँ लिख के आते हैं, कहीं ना कहीं वो ये बताते हैं कि देखिए इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल बहुत कम है। वी आर ऑलवेज वॉचफुल फॉर इट। लास्ट चीज़ देखिए, एक फियर ऑफ मिसिंग आउट करके एक चीज़ हमेशा बुल मार्केट्स में चलती है। हमें कहीं पे भी वो फियर नहीं होता। हमारा मानना ये है कि वी आर हेयर टू नंबर 1 प्रोटेक्ट आवर इन्वेस्टर्स वेल्थ एंड नंबर 2 ग्रो इट। तो अगर कहीं ना कहीं आपके मन में ये है कि वी आर नॉट कॉम्पीटिंग टू बी द बेस्ट फंड इन द कंट्री, बट वी आर कॉम्पीटिंग टू बी अ वेरी सस्टेनेबल वेल्थ इन द कंट्री, तो अपने आप बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। और तो सर आपने बहुत अच्छी बात बताई अभी कि जैसा कि हम कई बार सर अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में सुनते हैं कि दिस टाइम इट इज़ डिफरेंट, और ये बात हम बुल फेज में भी सुनने को मिलती है और बेयर फेज में भी ये सुनने को मिलती है कि इस बार तो कुछ अलग हो रहा है। सो आपकी बात से सर मुझे जो समझ आई कि यार यू नीड टू हैव क्लियर कन्विक्शन एंड द राइट एक्सपेक्टेशन। अगर आप इस चीज़ को अगर आप साथ में मेंटेन करोगे, तभी आप अपना एक लंबा 20, 25, 30 सालों का इन्वेस्टमेंट जर्नी आप देख पाओगे। तो
Now moving on, sir, and let me talk about this great institution called UTI Mutual Fund. And UTI Mutual Fund was actually the organization that started the investment culture in India back then in 1964. It had its own share of ups and downs. And last year I happened to be at your office and I was amazed to see कि यार एक हमारी धारणा थी कि यार यूटीआई तो ऐसा एज ओल्ड पब्लिक इंस्टीट्यूशन टाइप ऑर्गेनाइजेशन होगा, बट व्हेन आई वाज एक्चुअली व्हेन आई विजिटेड योर हेड ऑफिस I was flattered to see that this is like a new age company with a completely young set of people. So, if you can take us through the evolution of UTI, the dark days, the rise and rise of UTI, and you have lived it. So, I can hear it from you, sir. या थैंक यू वंस अगेन हितेश फॉर दिस क्वेश्चन. देखिए, जैसा आपने बोला 1964 में हमारी जर्नी शुरू हुई. वी वर इनकॉर्पोरेटेड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बिकॉज द देन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री मिस्टर टी कृष्णमाचारी फेल्ट के कहीं ना कहीं कुछ सेविंग्स इंस्टीट्यूशंस देश में होने चाहिए जिनकी वजह से आम निवेशक बाज़ारों के अंदर अपना निवेश कर पाए और जो ग्रोथ हम महसूस कर रहे हैं पूरी इकोनॉमी में उसका फ़ायदा उठा पाए. सो UTI came in as a savings institution, channelizing household savings, आम आदमी की savings, and collecting them, and then further investing them into the market. और by the way, जब हम मार्केट में निवेश करते थे तो जाहिर तौर पे कॉर्पोरेट जगत का भी फायदा होता था because these savings were being provided as capital to the corporate sector which was in need of this capital for growth. तो ये तो हमारे ओरिजिन्स हुए. पहले 30 साल आप समझ सकते हैं हम अकेले म्यूचुअल फंड थे देश के अंदर. 80 के दशक में हम कुछ और म्यूचुअल फंड्स देश में आने शुरू हुए, खास करके PSUs जैसे SBI और कैनरा बैंक, इन्होंने अपने म्यूचुअल फंड शुरू किए. और 90 के दशक में उसके बाद प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड्स भी देश में आने शुरू हुए. लेकिन हम केवल फाइनेंशियल मार्केट्स और म्यूचुअल फंड्स में ही नहीं रहे हैं. पिछले 30-40 साल हमने एक बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक भी इनकॉर्पोरेट किया. What is now known as Axis Bank was UTI Bank, which was obviously sponsored by UTI. देश की सर्वश्रेष्ठ exchange, which is National Stock Exchange, was also brought up by UTI. UTI was one of the original founding shareholders of National Stock Exchange, and there have been many such institutions which have been brought up by UTI. So, फाइनेंशियल जगत में बहुत योगदान हमारा रहा है बियॉन्ड म्यूचुअल फंड्स. हितेश, आपने बोला कुछ डार्क डेज भी रहे. मैं आज, क्योंकि आपने सवाल पूछा है, मैं आज उन सब यंग जनरेशन इन्वेस्टर्स को ये बताना चाहता हूँ जो हमारे डार्क डेज थे. दे वर नॉट ऑन अकाउंट ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट्स. आवर इन्वेस्टमेंट्स इवन देन वर एज स्ट्रॉन्ग एज दे आर टुडे. उस जमाने में जब सेबी रेगुलेशंस नहीं थे और NAV निकालने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश नहीं थी, उस जमाने में आपकी एक्चुअल पोर्टफोलियो की वैल्यू और जो NAV आप डिक्लेयर करते हैं उसके अंदर एक डिफरेंस होता था. NAV anyway was not declared on a daily basis. और उसके चलते there was some mispricing between the price at which one of our schemes, our largest scheme called US 64, used to buy and sell, or rather sell and repurchase, लेकिन उसकी actual NAV different होती थी और उसी के चलते ये crisis हुआ. It was not to do with the underlying investors which were very strong. बहरहाल मैं समझता हूँ कि हमारे लिए वो बहुत बड़ी सीख थी. We focused not only on investments after that, we focused a lot on our operations and our accounting and our NAVs, and that has helped this institution in the last 25 years. We still attract the best talent from the country, not only for investment processes but also in all other functions. और हमें लगता है कि हम एक 60-year young organization है और भारत की wealth creation journey में we are prepared for the next 60 years. Right, sir. तो सर आपने इतनी बेखूबी से सर आपने यूटीआई इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया और उसकी जर्नी समझाई हमें. तो सर वैसे ही थोड़ी सी बात करते हैं आपके फ्लैगशिप फंड की, विच इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फंड्स, विच इज़ यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड. तो सर यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड हैज एक्चुअली डिलीवर्ड 32 टाइम रिटर्न्स इन 33 years, एंड दैट इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग दैट यू गाइस हैव बीन एबल टू डिलीवर. तो सर मैं इससे दो बातें आपसे पूछना चाहूँगा. एक सवाल मेरा ये रहेगा कि व्हाट हैज बीन दोस टाइमलेस लेसन्स दैट इन्वेस्टर्स शुड learn from this, and थोड़ा सा सर if you can allow me to ask थोड़ा सा fund specific अगर मैं आपसे पूछूं तो what I can see is that you are really overweight on consumption and technology oriented consumption.
तो इस चीज को लेकर के सर अगर आप थोड़ा सा हमें बताएं कि व्हाई आर यू थिंकिंग इन दोज लाइंस, देन मे बी वी कैन डीप डाइव ऑन यूटीआई फ्लेक्सी कैप योर फंड. श्योर. देखिए हितेश, सबसे पहली चीज़ यूटीआई फ्लेक्सी कैप की जो कोर फिलॉसफी है वो है टू बाय हाई क्वालिटी एंड हाई ग्रोथ बिजनेसेस. अब मैं विदाउट यूजिंग जार्गन्स आप सबके सामने क्वालिटी और ग्रोथ की परिभाषा रखना चाहता हूँ. देखिए व्हेन वी स्टार्ट अ बिजनेस, सबसे ज़रूरी चीज़ हम सबके लिए ये है कि वो बिजनेस प्रॉफिटेबल हो. अगर मैं इसको और सरल भाषा में आपके सामने रखूं, अगर आपने 1 करोड़ का निवेश किया है अपने बिजनेस के लिए, तो जाहिर तौर पे आप चाहते हैं कि आपको हर साल 15 लाख या 20 लाख या 25 लाख की इनकम उस 1 करोड़ के कैपिटल के ऊपर हो. 25 लाख की रिटर्न ऑन अ 1 करोड़ कैपिटल मेक्स इट अ 25% रिटर्न ऑन कैपिटल. और अगर आपको 15 लाख मिल रहे हैं, दैट मेक्स इट 15% रिटर्न ऑन कैपिटल. हमारा ये मानना है कि अगर सस्टेनेबल तरीके से आप 25 लाख हर साल किसी बिजनेस से निकाल पा रहे हैं, दैट इज अ मच बेटर रिटर्न ऑन कैपिटल कंपेयर टू 15%. और अगर कोई बिजनेस ये कर पा रहा है तो जाहिर तौर पे इट विल क्रिएट मच हायर वेल्थ ओवर द लॉन्ग टर्म. वॉलिटिलिटी ईयर टू ईयर हो सकती है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, any business which is delivering 25% return on capital, which obviously will be better than 15% रिटर्न ऑन कैपिटल. ये तो थी पहली चीज़. दूसरी चीज़, अगर आपके बिजनेस में ग्रोथ के बहुत अवसर हैं, अगर आप पहले साल में मान लीजिए 2 करोड़ की सेल कर रहे हैं, लेकिन साल नंबर 5 आते आते आपने वो सेल 7 या 8 करोड़ कर दी है, तो जाहिर तौर पे अगेन द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग विल वर्क इन योर फेवर. अगेन समबडी जिसकी एनुअल सेल्स 2 करोड़ से बढ़ के केवल 4 या 5 करोड़ रह पाई है. तो मूल रूप से ये दो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, प्रॉफिटेबिलिटी एज डिफाइंड बाय हाई रिटर्न ऑन कैपिटल और एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू री इन्वेस्ट, ताकि वो अच्छी खासी मजबूत ग्रोथ दिखा सके. और हमारा ये मानना है, अगर हम ऐसे बिजनेसेस का चुनाव करें एंड देन विद फुल कन्विक्शन स्टे इन्वेस्टेड इन देम डिस्पाइट द अप्स एंड डाउन. मजबूत से मजबूत बिजनेस के अंदर उनके स्टॉक प्राइसेस में उतार चढ़ाव होना बहुत स्वाभाविक है. आप अगर हिस्ट्री पढ़ें फाइनेंशियल मार्केट्स की, तो स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी इज ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड बाय द बेस्ट ऑफ द बिजनेसेस इन एनी इकोनॉमी. और ये चीज़ हमारे को दिमाग में हमारे छपी हुई है, और उसी के चलते आर कन्विक्शन नेवर गोज डाउन इन सच बिजनेसेस. हम एक बार जब डीप रिसर्च करने के बाद चुनाव कर लेते हैं ऐसे बिजनेसेस का, देन वी जस्ट होल्ड ऑन टू देम. दूसरा प्रश्न आपका था कि हम कंज्यूमर सर्विसेज और कंजम्पशन पे इतने पॉजिटिव क्यों हैं. देखिए अगेन वन फैक्ट आई वांट टू गिव यू बिफोर आई रीच टू दिस. इंडिया इज अ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी. अगर हम अपनी ओवरऑल इकोनॉमी, अपनी ओवरऑल जीडीपी को डिवाइड करें बिटवीन कंजम्पशन एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट्स, तो आंकड़े बहुत स्पष्ट हैं. 65 to 70% of India's GDP is driven by consumption. Exports is barely 15%. It's actually 12 to 13%. The remaining is capital expenditure either by the government or by corporates. तो एक तरह से समझ सकते हैं the bedrock of India's growth is domestic consumption. और अगर domestic consumption and the growing middle class which is hungry for goods and services and it is consuming more and more every year is the real driver for the economy, फॉर मी इट इज़ एक्सट्रीमली क्लियर कि हमको बिजनेसेस भी ऐसे ढूंढ के लाने हैं विच आर फीडिंग ऑन दिस एवर ग्रोइंग कंजम्पशन ट्रेंड्स. एंड दैट्स व्हाट वी डू इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग आवर पोर्टफोलियो. कंजम्पशन थीम्स चेंज होते रहते हैं. आज के 20 साल पहले फूड सर्विसेज जोमेटो जैसी कंपनी नहीं थी. आज फूड सर्विसेज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी. वी ऑल नो हाउ सक्सेसफुल इट इज. देयरफॉर कंजम्पशन कहीं ना कहीं कोर थीम रहेगा, बट वी हैव टू पिक एंड चूज व्हाट पार्ट ऑफ कंजम्पशन इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 years. I think with the GST cut, which this government has announced, and 8th pay commission rollout which is expected to happen, I think consumption will get a more fillip in the coming days. Absolutely, Hitesh, you're right. It all started with income tax cuts, which were announced in the budget. अपने आप में they were a positive event because obviously जैसे आपकी disposable income बढ़ती है, you have the means to consume more. दूसरी चीज़ GST कट, जैसे आपने कहा, GST कट इज़ अ वेरी वेरी बिग एंड पॉजिटिव थिंग. उसके चलते once again it should help consumption growth in the country. Last but not the least, 8th पे कमीशन जो कि डिक्लेयर होगा अगले 3-4 महीने के बाद.
that will also be a very positive thing on consumption, because this time instead of tax getting cut, you're going to see more income in the hands of consumers. So yeah, all these three things put together, to our mind, should give a strong push to consumption. राइट. तो अजय सर, आपने भी थोड़ी देर पहले हमें समझाया अबाउट ग्रोथ एंड क्वालिटी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग. Again, I'll draw a parallel and I'll come to my question. So for the audience, let me just tell you that Ajay sir is a very avid traveler and he loves trekking in the mountains. And trekking in mountains requires a lot of patience, mental strength, right? कई बार आप रास्ते भी भटकते हो, बट आपको पता होता है कि आपको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, right? Similarly, sir, coming to our field of investments, what I see is that हमारे यहाँ ना सर स्टाइल्स रोटेट करते रहते हैं. कभी बोलते हैं कि यार अभी देखो ग्रोथ और क्वालिटी चलेगा, तो कभी वैल्यू चलता है, राइट? आई रिमेंबर बैक देन इन 2019-20 यू आर विनिंग ऑल द अवार्ड्स इन द इंडस्ट्री फॉर बीइंग द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड मैनेजर across the board, and by a handsome margin, I can tell you. And then cut back to the year 2022-23, and people were thinking, yeah, the story of growth and quality is over. And we saw so many fund managers kind of changing their investment style. But I remember meeting you twice at different places, and I was very overawed by your conviction on your style of investing. So, coming to my question, sir, ki in these kind of scenarios, as a fund manager, where you see that you are kind of when the investors only look at returns and they see that the near-term performance is not there. So, as a fund manager, do you have that feeling of the fear of missing out? Ki nahi yaar, mere ko I'll have to change things. That's a beautiful question, Hitesh. I know all of us face this pressure. Not only me, anybody who's passionate about his style always faces this pressure. But what helps us always is knowing history. You know, I often say this to our team of young analysts and our young fund managers, that in the financial markets, of course, knowing and projecting the future is important, but what is equally important is learning history and the lessons of history. One of the lessons of history is that there can be 5 different ways of reaching to that pot of gold. अगर हम wealth creation की बात करें तो कोई एक तरीका नहीं है, कोई एक particular philosophy नहीं है जिससे आप wealth create कर सकते हैं. मेरे लिए quality growth एक बहुत बढ़िया माध्यम है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने का. किसी और के लिए वैल्यू स्टाइल एक बहुत बढ़िया माध्यम हो सकता है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने का. किसी और के लिए हो सकता है मोमेंटम स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बिल्ड करना बहुत अच्छा हो सकता है. इन ऑल 3 ऑफ देम यू कैन क्रिएट वेल्थ, बट यू नो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? इट इज स्टिकिंग टू दैट स्टाइल, स्पेशली ड्यूरिंग एडवर्सिटी. और मैं समझता हूँ यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन द लॉन्ग टर्म जर्नी. आप कोई भी स्टाइल लीजिए, लेकिन उसको पैशनेटली फॉलो करिए. अगर आप उसको पैशनेटली फॉलो करेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं अगर आपके स्टॉक सिलेक्शन में गलती हुई है, यू ऑब्वियसली हैव टू करेक्ट इट, बट प्लीज डोंट चेंज योर कोर स्टाइल एंड फिलॉसफी. द वन बिग लेसन ऑफ इन्वेस्टिंग इज दैट वंस यू हैव चोजन अ सेंसिबल स्ट्रैटेजी, प्लीज स्टे विद इट. हितेश, एक और बहुत चौंका देने वाले नतीजे जो हम देखते हैं, जो कहीं ना कहीं इस प्रश्न से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपने बात करी स्टिकिंग टू योर स्टाइल. बहुत आंकड़े ऐसे हैं विच टॉक अबाउट द लॉस ऑफ रिटर्न्स दैट इन्वेस्टर्स मेक बिकॉज दे आर नॉट स्टिकिंग टू देयर फंड और स्टिकिंग टू देयर स्कीम. आपने बात करी इन्वेस्टर्स फील फ्रस्ट्रेटेड. उन्हें लगता है कि देखिए हम किसी फंड के अंदर हमने निवेश किया, वो एक समय बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन फिलहाल अच्छा नहीं कर रहा है. शुड वी जंप? बिकॉज दे कॉन्स्टेंटली जंप फ्रॉम वन स्कीम टू द अदर. जो स्कीम रिटर्न आती है, इन्वेस्टर की रिटर्न ज़्यादा करके उससे कम होती है, बिकॉज दे आर इन्वेस्टेड इन अ स्कीम एंड इट वाज डूइंग गुड. दे केम आउट ऑफ अ स्कीम व्हेन इट वाज नॉट डूइंग गुड, ओनली टू इन्वेस्ट इनटू समथिंग एल्स which at that time was doing good, but there's obviously no guarantee that that will do or continue to do good in the future. So rule वही है, stick to your game, be patient. अगर मैं एक सिंगल सेंटेंस में इस चीज को डिफाइन करना चाहूं तो वो ये है, patience is one of those skills that is most important in your wealth creation journey. मैं वॉरेन बफेट को दुनिया का सबसे समझदार निवेशक मानता हूं. उन्होंने बहुत सरल शब्दों में एक बात कही थी, the market is designed to transfer wealth from an active investor to a patient investor. So जैसा सर ने बहुत बेखूबी से कहा कि यार the winners keep rotating
एंड एज एन इन्वेस्टर आपका काम होता है कि आप अपने पर्टिकुलर स्टाइल पे आप स्टिक रहिए. ये तो क्या होता है ना सर, ना ही इस तरफ रहे ना ही उस तरफ रहे और मानो पड़ा हम खड्डे में चले गए. I mean, for example, UTI FlexiCap is currently the top quartile fund in last 1 year performance, right? But then things keep changing, right? So आपको you have to remain loyal to your style of investing, and as an investor also we need to be very clear about what kind of a fund, what philosophy are we investing into, and then stick to it, right? तो सर अभी थोड़ी सी बात करते हैं सर. देखो, we are living in very turbulent times. I mean, कभी हमने ये नहीं सोचा था कि इंडिया, चाइना और रशिया तीनों साथ खड़े होकर फोटो खिंचा रहे होंगे और हाथ में हाथ मिला रहे होंगे. एंड डोनाल्ड ट्रंप, जिनका इलेक्शन कैंपेन मोदी जी किसी समय कर रहे थे, वो इंडिया पे इतने भारी पड़ेंगे. तो things are changing, and we are kind of coming to a new global order. So how do you see the new global order shaping up, sir, in context of India's economy and markets for the coming decade? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हितेश. जैसा कि हम सब ने सुना है, इन पॉलिटिक्स देर आर नो परमानेंट एनिमीज, देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स. जियो पॉलिटिक्स में भी वही कहानी है. कोई परमानेंट आपका एनिमी देश नहीं होता, कोई परमानेंट आपका फ्रेंडली देश नहीं होता. ट्रंप ने हम सबको सिखा दिया है पिछले 6 महीने में. यूरोप वॉज देयर क्लोजेस्ट एलाय, लेकिन ट्रंप ने यूरोपियन नेशंस को भी नहीं बख्शा है अपने टैरिफ से. इंडिया वॉज सपोज टू बी, जैसा आपने बोला, एंड पर्टिकुलरली मिस्टर मोदी वॉज सपोज टू बी हिज क्लोज फ्रेंड, लेकिन फिलहाल तो उन्होंने जिस तरीके के टैरिफ्स हमारे ऊपर लगाए हैं, ऐसा लग रहा है कि वी आर देयर एनिमी नंबर 1. बट देखिए, कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है. मेरा ये मानना है मूल रूप से कि इंडिया इज अ कंट्री, बिकॉज ऑफ इट्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इट विल ऑलवेज बी अ नेचुरल एलाय टूवर्ड्स many advanced countries, whether it is US or European countries or even Japan. It is difficult for China to be a very close ally of these countries. Equally, it is difficult for India to be a very close ally of China. There are points of multiple disagreements between India and China. तो जरूर ये फिलहाल की सिचुएशन ऐसी है कि हमें लग रहा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हो गया है, हम चाइना के बहुत नज़दीक चले गए हैं और हम यूएस से बहुत दूर चले गए हैं. लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद 6 महीने से 12 महीने में ये पिक्चर वापस से बदलेगी. हाँ, मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जहाँ तक रशिया का सवाल है, रशिया हैज़ बीन अ बिग एलाय फॉर अस राइट फ्रॉम द 1960s. हमने बहुत वॉर लड़े हैं जिसमें रशिया हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है, इंक्लूडिंग द लेटेस्ट 3-day वॉर दैट वी हैड इन May of this year. रशियन इक्विपमेंट्स हमारी फौज यूज़ करती हैं. तो रशिया के साथ रिलेशनशिप खराब करना तो मैं नहीं समझता कोई आसान चीज़ रहेगी. बट हाँ, हो सकता है कि चाइना मे बी अ फ्रेंड ऑफ कन्वीनियंस राइट नाउ. From a business perspective, US will find it very difficult to ignore India because we are about to be the 3rd largest economy. Not only the 3rd largest economy, but also the fastest growing economy at that size. मुझे नहीं लगता US जैसा देश इंडिया के बगैर बिजनेस कर पाएगा, and therefore, to my mind, better senses will prevail. तो सर, मैं काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करता हूँ और बहुत लोगों से सुनता हूँ ऑफ द स्टेज कि यार देखो, Trump साहब is a very tough negotiator and he is trying to arm twist you into signing a deal. But then India is holding its ground like no other country. India is not retaliating, but India is showing that what they are capable of. So in that kind of a scenario, sir, ऐसा माना जाता है कि जिस दिन इंडिया यूएस का ट्रेड डील साइन हो गया, then all the negative stories that we are hearing, which is kind of keeping the market at these levels, will be a thing of history and we would have new horizons to look at. आपका मानना सर ऐसा है? हितेश, इसमें हमारा व्यू थोड़ा डिफरेंट है. देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें, ऑब्वियसली यस, इफ इंडिया इज गोइंग टू बी अ हाई ग्रोथ कंट्री, जिसके बारे में हमें कोई भी ऐसा डाउट या संशय नहीं है कि इंडिया की ग्रोथ मॉडरेट कर जाएगी. थोड़ी बहुत स्लो हो सकती है, हो सकता है 7% की जगह हम 6% पे ग्रो करें, बट वी विल स्टिल बी अ हाई ग्रोथ इकोनॉमी. एंड देयरफॉर ओवर द लॉन्ग रन बहुत अपॉर्चुनिटीज़ कॉर्पोरेट जगत में आएंगी, बहुत नए बिजनेस मॉडल खड़े होंगे, बिजनेस मॉडल्स में ग्रोथ आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी आएगी. जाहिर तौर पे पेशेंट इन्वेस्टर्स विल बी रिवॉर्डेड. बट देखिए, ये मानना कि जो बाजार में कमजोरी का दौर चल रहा है वो ट्रंप और टैरिफ वॉर्स को लेके है, वो भी गलत है. मैं आप सबको याद दिलाना चाहूँगा कि द मार्केट्स पीक्ड समटाइम इन सितंबर. बाय द वे, देयर वर नो साइंस ऑफ एनी टैरिफ वॉर देन. एंड
When wars were first announced in February, the markets were nervous. लेकिन उसके बाद markets in the month of April में actually recovered a lot from the bottom. उसके बाद जून में जब ये बातें होनी शुरू हुई कि शायद इंडिया के खिलाफ भी एक टैरिफ आएगा, मार्केट्स हैव टर्न नर्वस वंस अगेन. तो हमारे मानने में नर्वसनेस इन द मार्केट इज नॉट बिकॉज ऑफ टैरिफ वॉर्स. जैसा कि मैंने पहले भी कहा, 12-13% हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, जिसमें से यूएस को हम केवल 2% ऑफ जीडीपी एक्सपोर्ट करते हैं. तो इससे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन वैल्यूएशंस हमारे फेवर में नहीं है. व्हाट इज होल्डिंग बैक द मार्केट्स is this phase of massive excitement because of which valuations have become very high. And I think there are many sensible investors who feel that जब तक ये valuations moderate नहीं करेंगे, बाजारों के अंदर returns in the future will also be very weak. So valuation is the biggest factor to our mind, not Trump tariffs. तो सर पिछले साल के मुकाबले देखें तो वी आर एनीवेज डाउन अबाउट 5-7% एंड कंपनी की अर्निंग्स तो डेफिनेटली बढ़ी है इस पीरियड के अंदर में, मे बी 10-12%. तो फ्रॉम वैल्यूएशन परस्पेक्टिव सर पिछले साल से हम शायद 15-20% कूल ऑफ हुए, बट यू थिंक देयर इज इनफ, देयर इज मोर स्कोप फॉर द वैल्यूएशंस टू कम डाउन एंड हेंस इट बिकम्स अ very attractive market, or you feel that we are in a comfortable zone? Again, I'm not thinking short termish, sir, I'm thinking about the next 10 years. Right. नहीं हितेश, this is a very valid question you are asking. बट देखिए हुआ क्या था कि इन 2023 एंड 24 द मार्केट्स रैन अप सो मच कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लेवल पे चले गए थे. उस एक्सेसिव लेवल से ज़रूर थोड़ा कूल ऑफ हुआ है बिकॉज मार्केट्स आर डाउन, प्लस अर्निंग्स ग्रोथ हैज हैपेंड, बिकॉज ऑफ विच PE is down 10-15%. लेकिन अभी भी even from the present levels, large caps are clearly 15-20% higher than long-term average. Mid and small caps are more than 50% higher than their long-term averages. तो हालांकि cool off ज़रूर हुआ है, लेकिन cool off होने के बावजूद because of the excesses of 2024 in particular, the first half of 2024, the valuations still are, in case of mid and small caps, I would use the word scary. हमें अभी भी मिड और स्मॉल कैप से डर लगता है. वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं कंपेयर टू एवरेजेस. और इवन लार्ज कैप में इतना डर की जरूरत नहीं है, लेकिन लार्ज कैप्स में वैल्यूएशन 10 से 15% ज्यादा है. ऑलराइट सर. तो सर काफ़ी सारी बातें हो गई मार्केट्स को लेकर के अभी के फिलहाल में, बट अगेन सर फ्रॉम अ 10-year पर्सपेक्टिव सर, हम सब सुनते हैं कि यार इंडिया अच्छा करेगा, बट इफ यू कैन गिव मी 2 or 3 सॉलिड रीजंस कि यार बिकॉज ऑफ दीज 2 or 3 रीजंस दैट यू सी India would actually end up doing massively great for itself. Sure. Hitesh, let us try and keep the equation very simple. Let us just keep all the complicated jargons out. मेरे मानने में हिंदुस्तान 2 वजहों की वजह से अच्छा करता रहेगा अगले कम से कम 2 से 3 दशक. We may be becoming the 3rd largest country in the world. लेकिन कहीं ना कहीं बीइंग एन इंडियन मेरे लिए एक मायूसी की बात यह है कि हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम केवल $2,500 पर एनम है. ये एवरेज है. जाहिर तौर पे गरीबी अभी भी इस देश में बहुत है, तो देर आर मैनी पीपल विच आर अर्निंग मे बी जस्ट $500 or $600 पर एनम. लेकिन $2,500 व्हेन यू कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट्स, अभी हम विकसित देशों की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पे एनुअल इनकम्स आर 50,000, 40,000, 60,000. अगर हम केवल अपने चारों तरफ देखें जो बाकी इमर्जिंग मार्केट्स हैं, जैसे कि ब्राज़ील, जैसे कि रशिया, जैसे कि चाइना, जैसे कि साउथ अफ्रीका और मेक्सिको, इन सब की पर कैपिटा इनकम इज बिटवीन $8,000 to $12,000. तो हम इनके कहीं ना कहीं 1/4 लेवल पे इस वक्त हैं. What is most important for us to understand is that this per capita income will keep increasing as the growth in the economy trickles down to the level of the आम जनता या आम कंज्यूमर या एवरेज हाउसहोल्ड. And that journey will take many decades. And there are 2 things that will happen. पहली चीज, again we are blessed कि हमारी अभी भी country young है, and we will continue to see growth in working age population over the next 30 years. 2050 तक हमारे देश में working age population बढ़ेगी. जाहिर तौर पे if working age population increases, these very people after gaining employment will add to the middle class, and therefore middle class consumption will keep increasing. दूसरी चीज, जैसा कि मैंने पहले बोला, इसी मिडिल क्लास कंजम्पशन की इनकम भी बढ़ेगी. तो इसका मतलब जो आज एक नॉर्मल हाउस होल्ड कंज्यूम कर पा रहा है, उससे कहीं ज्यादा आज के 5, 10 या 15 साल के बाद कंज्यूम कर पाएगा.
सो दीज टू फैक्टर्स पुट टुगेदर गिव मी द फुल कॉन्फिडेंस कि हमारी जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल रहेगी, स्थायी रहेगी, और अगले 1 से 2 दशकों तक तो हमें चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट सर, जिस हिसाब से आपने पर कैपिटा इनकम एंड राइजिंग मिडिल क्लास एंड राइजिंग लोअर एज पॉपुलेशन की बात की, तो इससे तो काफ़ी कन्विक्शन बनता ही है कि यस, इंडिया वुड राइज एंड ऑब्वियसली कंजम्पशन वुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स दैट वुड लीड इंडिया फॉरवर्ड। अभी सर मैं बात करता हूँ सर, एक मेरे मेरे दिल में सर हमेशा ये सवाल आता है, और मैं जितने भी लोग हमारे इस शो में आते हैं मैं उनसे ये बात पूछता हूँ कि यार एक बात बताओ, मैं आई मीन 32 टाइम रिटर्न्स इन 33 ईयर्स, ये आपको कौन प्रोडक्ट देता है? कोई प्रोडक्ट नहीं देता। आई मीन फॉर एग्जांपल, अगर लेट्स से अगर ये एफडीज वगैरह अगर आपको 7-8% या किसी ज़माने में 10% का रिटर्न देते थे, तो शायद 33 साल में वो आपका पैसा 8 गुना 10 गुना कर देते, राइट? उसके जगह पर हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं, एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट यूटीआई फ्लेक्सी कैप, I mean, every fund in the industry which has this kind of a vintage has actually delivered those kind of returns. किसी ने 2% ज़्यादा दिया होगा, किसी ने 2% कम दिया होगा, बट सबने फिक्स रिटर्न से तो बहुत अच्छा दिया है। डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट सर, डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, यूटीआई जैसी संस्था जो 1964 से है, and it's been such a long journey for the Indian investor, yet we see only 5.5 crore investors. एंड ऑन दी अदर साइड व्हेन वी सी दैट लोग ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो वहाँ के आंकड़े तो 18-20 करोड़ पहुँच गए हैं। सो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आई डोंट नो व्हाई ईदर पीपल आर टू कंजर्वेटिव दैट वी हैव ऑलमोस्ट 220 लाख करोड़ सिटिंग इन द बैंक एफडीज, और पीपल आर टू स्पेक्युलेटिव और ग्रीडी व्हेन दे काइंड ऑफ जंप ऑनटू द स्टॉक मार्केट्स, whereas your mutual fund is positioned at the right spot, yet it has few takers, only 5.5 crore investors. सो मेरा सर सवाल आपसे ये है कि कंसिडरिंग कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने इतना इवॉल्व किया है एंड वी हैव द हाइब्रिड प्रोडक्ट्स एंड द एसआईपीज एज अ वे ऑफ इन्वेस्टिंग, what would really take India to move from this 5.5 crore investors to maybe 15-20 crore investors? श्योर हितेश, मुझे लगता है हमें आप जैसे कम से कम 2 से 3 हज़ार और लोग चाहिए जो इस जर्नी को 5.5 करोड़ से 10 करोड़ और फिर 20 करोड़ तक जल्दी से जल्दी पहुंचा पाएंगे। दिस कंट्री रियली लैक्स ट्रू वेल्थ एडवाइजर्स जो कि बहुत पैशनेटली काम कर रहे हैं एंड हु आर थिंकिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, जो ये सोच पा रहे हैं कि भाई इन्वेस्टर का पैसा या तो एफडी में अटका हुआ है खाली 6-7% पे, या फिर इन्वेस्टर बहुत ग्रीडी होकर डायरेक्टली स्टॉक मार्केट्स में खेल रहा है, जहाँ पे हो सकता है वो किसी 6 महीने या साल भर में बहुत पैसा बना ले, लेकिन अगले साल आते आते वो पैसा गंवा भी देता है। और एफएनओ में तो सेबी ने आंकड़े जारी किए हुए हैं कि ज़्यादा करके इन्वेस्टर जो है नुकसान झेल रहे हैं। तो इस जर्नी को अगर हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना है तो हमें आप जैसे एडवाइजर्स की बहुत ज़रूरत है। हमें ऑब्वियसली डिसिप्लिन म्यूचुअल फंड हाउसेस की भी बहुत ज़रूरत है जो कि इन्वेस्टर के हार्ड अर्न मनी को बहुत रिस्पेक्टफुली मैनेज करें। मैंने आपके पहले प्रश्न के उत्तर में ये भी कहा था कि हम समझते हैं यूटीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 1 इज टू प्रोटेक्ट द वेल्थ ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड देन ग्रो इट सो दैट वी कैन प्रोवाइड अ वेरी गुड रिटर्न। तो यही सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन मुझे लगता है काम करेगा। देखिए, आज के 10-15 साल पहले ये भी सोचना बहुत मुश्किल था कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री करीबन 80 लाख करोड़ की हो जाएगी। तो लेकिन कंबाइंड मेहनत रही है, रेगुलेटर्स की मेहनत रही है, एमफी की मेहनत रही है, आप जैसे वेल्थ एडवाइजर्स की और एमएफडीज की मेहनत रही है, और साथ के साथ म्यूचुअल फंड्स ने भी अपना योगदान दिया है। यही एक कॉम्बिनेशन चलेगा आगे जाके भी। इन्हीं सब के आपस के सूझबूझ के साथ और तालमेल के साथ ही ये इंडस्ट्री, मुझे लगता है बैंक डिपॉजिट जो फिलहाल में 225 लाख करोड़ है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा उनके नज़दीक पहुंचने के लिए। स्लो एंड स्टडी, सस्टेनेबिलिटी शुड ऑलवेज बी द मंत्रा। कुछ हमें जल्दी नहीं करनी है, कुछ हमें मिस स्टेप्स नहीं लेने हैं, लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऐसी चीज है कि हम अपने आप बैंक फिक्स डिपॉजिट्स के आसपास जल्दी पहुंच जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट अ मच बेटर रेट कंपेयर टू द बैंक एफडी रेट। जी राइट। तो सर आपसे बात करके मैंने आज इतनी सारी चीज़ें जानी, मतलब राइट फ्रॉम बिकॉज आई हैव नॉट सीन द क्रैशेज ऑफ 92, 2008 में मैं कॉलेज में एमबीए कर रहा था, एंड आई लर्न वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स कि एक बेयर फेस में हाउ डू यू काइंड ऑफ stick to your conviction, and also we discussed about the euphoria in the market, and especially the new breed of
advisors have seen mostly the good times in the market, and उसमें कैसे आपको steadfast रहना है अपने philosophy पे. That is what we learned from you. And आपका जो conviction है sir on growth and quality style of investing, that has delivered the results for you, and that we believe would continue delivering these results for you. UTI as an institution is growing by leaps and bounds. They have evolved like anything, and I have seen how they're currently managing their show at their head office with the kind of people that they have, both there as well as locally. So I'm pretty convinced that UTI has a very long journey to go, and all these funds will continue doing really well. So I had a lot many other questions sir, to ask you, but again, due to the paucity of time, we will not be able to ask you all those questions. But yes, thank you so much sir, once again for coming down to our Pleasure. show, for accepting our invitation, and we look forward to interacting more with you in the future, sir. I would say, Hitesh, it's our pleasure that you called us for your podcast, and UTI is privileged to be associated with you. And thank you very much for calling us here, and thank you everyone for patiently listening.